हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को लर्न करना, विच इज चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो अब क्या करना है, अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर एनफ फॉर कंबशन। कंबशन का क्या मतलब है? कंबशन का मतलब है, प्लीज रिकॉल दैट एन ऑब्जेक्ट दैट इज reacted with oxygen when it produces heat or light or both heat and light, that is called combustible substance and the process is called combustion. And air is obviously required for combustion, and of course combustible substances, that are the substances which can be combusted. But the question is air alone required? No. Well, there is a third component too, and for that let us investigate, let us perform an experiment. Experiment कैसा? एक्सपेरिमेंट ये है कि हमें एक पेपर लेना है और पेपर को क्या करना है, पेपर को एक लाइटेड मैचस्टिक जलाया और पेपर को उसके पास ले आए तो क्या होगा, तो इंस्टेंट पेपर जलना शुरू हो जाएगा, राइट? इंस्टेंट पेपर जल जाएगा। नाउ वी टेक अनदर पीस ऑफ पेपर और उस पर क्या करना है, उस पर मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़नी है और ऐसे पकड़नी है कि सनरेज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फोकस पे कंसंट्रेट करे। तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि स्मोक विल अराइज एंड द पेपर स्टार्ट्स टू burn, that the paper starts to catch fire. So thus we find that a substance can burn even without fire. हम ये नहीं बोल सकते कि फायर हमेशा ही ज़रूरी है कंबशन के लिए। अब इन दोनों केसेस में, केस 1 एंड केस 2, इन दोनों केसेस में क्या सप्लाई हुई टू द कंबस्टिबल सब्सटेंस? इन दोनों केसेस में सप्लाई हुई है हीट, राइट? तो focusing the sun rays on the paper heats it. The keyword over here is heats it. So the temperature of the paper, temperature के बारे में पढ़ रखा है ना, the degree of hotness or coldness of a body. So the temperature of the paper increases with time, and after some time what happens, the paper becomes so hot that it starts burning. Temperature बढ़ रहा है क्योंकि heat की supply मिल रही है through sun rays and it starts burning. And there is another very important term that you should know, that is ignition temperature. Ignition temperature क्या है? The minimum temperature at which a substance starts to catch fire, right? That is ignition temperature. अब पिछले केस में क्या हुआ था, फर्स्ट केस में, that is this case, ignition temperature of the paper was lower than the already ignited matchstick, right? So the paper caught fire easily, right? Now in the second case what happened, it took some time, right? It took some time to focus that sun rays onto a particular point and then it starts to catch fire. Heat ने अपना काम किया पर धीरे धीरे, मतलब क्या है, heat is important which is supplied to the combustible substance so that it reaches its ignition temperature. I hope it is clear. The combustible substance should reach its ignition temperature और उसके लिए heat supplied होगी तभी ये possible है। यानी कि थर्ड जो component है which is important for combustion along with air, along with combustible substance, that is heat, right? So what is the conclusion over here? That here you see we can conclude that for the combustion process to occur there are 3 requirements. And what are these 3 requirements? A combustible substance is required which we call fuel. पेपर हो गया, केरोसिन हो गया, कॉटन हो गया, and oxygen, of course we already learned that oxygen is required for burning, oxygen is required for combustion. Now the third is that we learned through these 2 experiments are that the heat that allows the fuel to reach its ignition temperature, ignition temperature पे reach करेगा तभी वो substance combustible होगा, right? Now we go on to the next topic. Can physical and chemical changes occur in the same process? My dear students, nature में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें
सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल नहीं, दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलती है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बर्निंग ऑफ कैंडल, और क्वेश्चंस आते हैं इससे रिगार्डिंग दैट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेस वेयर यू विटनेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ। देखिए कैंडल का एक विक होता है, राइट, और विक पे ही हम फायर जो है लाइट करते हैं, राइट, और वो फायर से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से वैक्स जो है वो मेल्ट होने लगता है, और लिक्विड वैक्स धीरे 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 वेपराइज हो जाता है, वेपर वैक्स वेपर्स क्रिएट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों नए प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि recall new products are being produced, right, and the process is irreversible, so we can say that this is a chemical change। लेकिन इसमें physical process भी हो रहा है। कैसे? देखिए कैंडल जो है वो धीरे धीरे छोटी भी तो हो रही है, चेंज इन साइज, चेंज इन शेप, राइट। तो इस वजह से ये फिजिकल चेंज भी है, तो दोनों हो गए, फिजिकल चेंज भी हो गया, केमिकल चेंज भी हो गया। तो इसमें जो है पैराग्राफ में ना ये पूरा दिया हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको बातों बातों में एक्सप्लेन कर दिया। तो कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल वेर इन वी गेट टू विटनेस बोथ फिजिकल एंड chemical changes. Now we go on to the next subtopic which is, are changes permanent? Changes क्या permanent होते हैं? होते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन कभी कभी वो परमानेंट नहीं भी होते, वो रिवर्सिबल हो जाते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वाटर को आप बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर को आप कंडेंस करेंगे तो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, उस वाटर को आप फ्रीजर में रख दे तो आइस बन जाएगा। सो यू कैन सी दैट दिस चेंजेस व्हाट, दिस चेंजेस रिवर्सिबल, वी कैन रिवर्स द चेंजेस, राइट। बट कुछ चेंजेस परमानेंट होती है। वुड को आप बर्न करते हैं तो क्या होता है, इट कन्वर्ट्स टू ऐश, कैन यू गेट बैक वुड फ्रॉम इट? नो, यू कैन नॉट। So such changes are irreversible. Now let us fill this particular table, activity 5.8, let us think। तो ये तो ऑलरेडी फील्ड है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेल्टिंग आइस क्यूब, द ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक, ऑफ कोर्स। मेल्टिंग आइस क्यूब मतलब क्या, आइस क्यूब इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। नाउ हाउ डू वी गेट द ओरिजिनल आइस क्यूब? वी विल जस्ट पुट इट बैक इन द फ्रीजर, राइट। Now next is chopping vegetable. चॉप करते हैं वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स छोटे हो जाते हैं साइज में। Now you cannot just glue them back, right? This is really an irreversible thing. You cannot glue them back. So the original state cannot be brought back in this case. So melting of ice cube हो गया, chopping vegetables हो गया। Next is boiling water. Boiling water को original state में कैसे ले आए, मतलब water में कैसे ले आए? अभी तो steam बन गया ना, अभी water vapors आ गए। तो अभी क्या करना है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने मेंशन किया कंडेंसेशन का यूज करेंगे। थ्रू कंडेंसेशन वी कैन गेट बैक द लिक्विड ड्रॉपलेट्स। आई होप यू रिमेंबर क्या करना है। पानी बॉईल हो रहा है तो उसके पास एक लिड ले जाएंगे, कोई भी प्लेट भी ले जा सकते हैं, जो क्या है उसका सरफेस कूल है, और कूल होने के कारण द वाटर वेपर्स विल कम इनटू कांटेक्ट विद द कूल सरफेस एंड देन इट विल ट्रिकल डाउन इन द फॉर्म ऑफ liquid droplets. So we can achieve this original state in the case of boiling water. Now making popcorn from corn. कॉर्न से पॉपकॉर्न बन गए, अब वापस पॉपकॉर्न को कॉर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट, कर ही नहीं सकते हैं। सो द ओरिजिनल स्टेट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक in the case of making popcorn from corn. Now you can extend this list. There are so many changes around us. Look around you. There are so many changes. You can extend this list up to 100 numbers, I think, or more than 100. So returning to the original object or substance with which we started shows that the changes we brought can be reversed, यानी कि रिवर्सिबल है वो रिएक्शन। जैसे कि आइस मेल्ट होता है, इट कैन बी रिफ्रोजन इनटू आइस। वाटर इवेपोरेट करता है कंडेंसेशन के थ्रू, इट कैन बी ब्रॉट बैक टू लिक्विड वाटर। However, some changes cannot be reversed. Yes, my dear students, as we just discussed, some changes cannot be reversed, right? Like chopped vegetables cannot return to their original state.
we just discussed, and making popcorn cannot go back to its original form of corn, right? So next subtopic is, are all changes desirable? Well, no, not all changes are desirable, but some changes are desirable. Desirable changes क्या है? देखिए क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं. Desirable changes है the changing of milk into curd. दूध को कर्ड में बना सकते हैं, राइट? कर्ड हम बनाते भी है घर में, आप अपने मम्मी पापा से पूछना कैसे कर्ड बनता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यस, फ्रूट्स कच्चे कच्चे रह जाते तो खा पाते? सब फ्रूट्स तो कच्चे नहीं खा सकते ना, उसको राइप करने देना होता है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. कटिंग ऑफ फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट, यस, कटिंग ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सब कुछ ऐसे ही होल नहीं खा सकते ना. एंड कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच इज डिजायरेबल. अगर जो सब्जी है जो आपको बनानी है वो कुक्ड फॉर्म में नहीं हो तो कैसे खा सकते हैं ना. सब सब्जियां हम कच्ची नहीं खा सकते, राइट? तो हमें कुक्ड फॉर्म में चाहिए चीज़ें. तो कुक्ड फॉर्म इज अ डिजायरेबल फॉर्म, इट्स अ डिजायरेबल फॉर्म ऑफ चेंज, राइट? And then there are some undesirable changes also. Undesirable changes कैसे? जैसे देखिए rusting of iron. We don't want our structures to be rusted, right? इससे क्वालिटी खराब होती है, स्ट्रक्चर पे असर पड़ता है. And then decay of food during storage. एक्सपायरी डेट आपको पता है ना, सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है. मतलब क्या, एक टाइम के बाद द थिंग्स गो स्टेल, राइट? द थिंग्स गो नॉन कंज्यूमेबल, राइट? हम वो कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज आफ्टर अ वाइल द फूड विल बी स्टेल, राइट? वी कैन नॉट कंज्यूम इट. सो दिस इज अनडिजायरेबल चेंज. बट यस, अनडिजायरेबल चेंज को डिजायरेबल चेंज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे फूड आई सेड इट इज स्टेल एंड देन दैट इज अनडिजायरेबल. लेकिन फूड को अगर हम सॉइल में रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स के छिलके हो गए, वेजिटेबल्स के कुछ ऐसे पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते उनको सॉइल में छोड़ देते हैं कई दिनों के लिए, सो डिकम्पोजिशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विल टेक अप इन हायर ग्रेड्स. जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिकम्पोजिशन, इट इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन of the food into smaller substances with the help of certain bacteria. So decomposition of food can be very useful in converting food waste into compost. And compost मतलब क्या, highly fertile चीज़ जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो येस, अनडिजायरेबल चेंज को भी डिजायरेबल बनाया जा सकता है. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, राइट? सो सम चेंजेस ऑकरिंग ओवर द ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स, ऑब्वियसली कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इन सबको चलाने में फ्यूल्स की ज़रूरत है और इनको कंबशन करते ही क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स. ऑल्सो इट रिलीजेस मेनी सब्सटेंसेस थ्रू एवेपोरेशन एंड इट कॉजेज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. So next is some slow natural changes. वेरी स्लो, क्योंकि वेदरिंग ऑफ रॉक्स का एग्जाम्पल दिया है. ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स इट ऑकर्स. वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग का मतलब है कि रॉक्स में ऐसे चेंजेस आती है जिससे कि वो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. इनफैक्ट सॉइल रॉक्स जो है सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम वेदरिंग बोलते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग द रॉक्स कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सो वेदरिंग जो होता है फिजिकल चेंजेस के कारण भी होता है और केमिकल चेंजेस के कारण भी होता है. लेट अस रीड. Have you seen heaps of sand, soil and stones lying at the base of mountains as shown as 5.10a? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, इनको सेडिमेंट्स बोलते हैं. एट द बेस ऑफ द क्लिफ ये सेडिमेंट्स है. तो ये सेडिमेंट्स ये रॉक के छोटे फॉर्म है ना, तो ये छोटे फॉर्म जो है कैसे हुए, वो धीरे धीरे हुए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए. सो दीज आर फॉर्म, द सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम physical changes that break up large rocks into smaller pieces. Physical changes जैसे wind,
जैसे सोलार एनर्जी, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। सो टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक। तो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं जैसे कि मैंने कहा सन की ताप की वजह से, और जो ट्रीज होती है ना, ट्रीज भी ग्रो करती हैं थ्रू रॉक्स एंड दैट ब्रेकेज ऑकर्स बिकॉज द ट्री नाउ ग्रोज ना, तो रॉक्स में क्रैक आ जाती हैं और रॉक्स के अंदर अंदर जो पानी है वो भी फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज होके क्या होता है, क्रैक होके जो है रॉक्स जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंड वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस। तो ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस हो गए, ये केमिकल चेंजेस हो गई। So an example of such a chemical change is shown in 5.10b। तो यहाँ पे क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे रेड रेड मार्क आपको नजर आ रहा है। ये जो रेड हुआ वो क्या है, वो आयरन ऑक्साइड है, पढ़ रखा है ना आपने इस बारे में। तो ये जो आयरन ऑक्साइड है इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, इज द रिजल्ट ऑफ the rock surface being exposed to a long time to water or air containing water vapor। आपको पता है कि मॉइस्ट एयर के कारण आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड की लेयर एक फॉर्म हो जाती है आयरन पे, आपको सबको पता है। तो यही हो रहा है यहाँ पे, फिजिकल चेंजेस भी हो रही हैं इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, केमिकल चेंजेस भी हो रही हैं। फिजिकल चेंजेस कैसे, सन की हीट की वजह से, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज की वजह से, थ्रू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड द वाटर बीइंग फ्रोजन इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स। केमिकल चेंजेस क्या, जो केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं पानी में, रॉक्स में, वो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज करवा रहे हैं। तो ये ओरिजिनली ब्लैक कलर सॉइल था जिसमें वो रेड रेड मार्क्स आ गए हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ iron oxide. So these physical and chemical changes in rocks are collectively called weathering, which results in the formation of soil. इस बारे में थोड़ा सा weathering के बारे में आपने Nature's Treasure में पढ़ा होगा in your chapter 11 class 6, right? So next is what? Next is another subtopic which is the last subtopic and that is erosion. Erosion के बारे में आपने छोटी उम्र से आप पढ़ते आए हैं। erosion क्या है? erosion मतलब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और क्या हो रहा है, वो ब्रोकन डाउन होके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, राइट? So have you noticed fine sand collecting on riverbeds or lakes? This sand is formed when rock pebbles. So sand is formed when rock pebbles, soil and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces. Which are those natural forces? Those natural forces are wind and flowing water, and this process is called erosion. So when the sand is broken down and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water, that process is called erosion. And erosion is a type of physical change. Please remember that. Erosion during a landslide is an example of a physical change. प्लीज रिमेंबर, वेदरिंग जो था वो फिजिकल और केमिकल चेंज बोथ था, और इरोशन में क्या इन्वॉल्व है, फिजिकल चेंज। ओके, तो अब क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स है इरोशन के क्या क्या है, विंड है, फ्लोइंग वाटर है, राइट? अब वो पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर स्पीड कम हो गई तो वो जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो गई है, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे सेटल डाउन करना शुरू करेगा। अगर वो सी या ओशन के ऊपर से वो मटेरियल जा रहा है, फर्ज करो, तो उसकी स्पीड कम है विंड और फ्लोइंग वाटर की, तो वो सेटल डाउन हो गया। वो सेटल डाउन हो जाएंगे जब वो पार्टिकल्स वो सेडिमेंट के फॉर्म में, तो क्या होगा, ऑन द सी बेड, ऑन द ओशन फ्लोर, दीज पार्टिकल्स विल एक्यूमुलेट टुगेदर एंड अगेन बिकम रॉक। So this is all a part of a big cycle, you know. Weathering से क्या होता है, rock is converted into soil
थ्रू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और सॉइल का क्या होता है, सॉइल जो है वो धीरे धीरे इरोडेड होता है जब स्पीड ऑफ विंड एंड वाटर इज लेस, then it settles down at the bottom of the ocean floor or seabed and becomes rock. So it's all the part of a very big process, right? So erosion is a physical change and weathering is a physical and chemical change both. I hope it is clear. The chapter is very simple. Any doubt, any query, मैं तो अन्वेषा मैम हमेशा आपके साथ है, तो आप बस कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल करके डायरेक्टली पूछ लीजिए अपने डाउट्स और क्वेरी। सो हैप्पी लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।